विष्णु गुरुदेवो साक्षात गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री This is Arpita Agarwal, a class 6th student, Skylark student. That's great. Really great. If I could have just 10% of the confidence she's having when I was of her age, I would have been great. Thank you. A very warm welcome to you all on this beautiful day. Congratulations to the entire nation on this propitious occasion of Independence Day and Republic Day. Since 1994, Skylark education system has been celebrating Vasant Panchami, and Ma Saraswati has always blessed the students with superlative results year by year. I am really feeling privileged to be the part of this rich legacy. Without further ado, I would like to take this opportunity to tell you guys about the tradition of Skylark's annual award for academic excellence. Yes, I am talking about Mr. Skylark 2023 and Miss Skylark 2023 to be announced today, and for that sake, I feel honored to welcome the man behind all this. Yes, the mathematics mentor, the teacher who doesn't teach English but teaches the way to live life. The motivational speaker, Mr. Vikram Arora. The time has come to announce the Miss Skylark 2023. Everyone, put your hands together for Harshita Gupta, class 12. Side, please. So many people fail because they try to copy others, not realizing that everybody has a different question paper. So, ladies and gentlemen, we have a Skylark student who never copies but always come up with an alternate method of solving the mathematics problems. Put your hands together for Kavya Goyal, class 12. ज़्यादा नहीं बोलूँगा आज, right? I'll be limited. The first thing first, you know what? जो मैं अब तक एनालाइज कर पा रहा हूँ, अभी पोस्ट कोविड, प्री कोविड, ये कोविड वर्ल्ड को निकाल देते हैं. Let's move ahead in life, right? So this is the propitious day, this Saraswati Puja. I mean, we all will be blessed in the coming years, and the class 12 students who are going to have their board exam just 15-20 days after that, and of course class 10 student. One thing is that मैं बच्चों को क्या देख पा रहा हूँ, जो आप लोगों को मॉक टेस्ट लेने के बाद मैंने चेक किया, most of students don't know how to actually study. मतलब सीखना कैसे, ये सीख जाओ पहले, बस इतना ही है. लिसनर अच्छे बन जाओ, सीखना सीख जाओ, सीखना सीख जाओ. पता ही नहीं है बच्चे, they are lost. Some students are like physically present, mentally somewhere else. So what I want is that just stay focused. Now, how to? The word comes up, how to focus. सब focus ही नहीं होता. किताब खोलते ही नींद आ जाती है. बता रहे थे हमें पीछे, right? तो बस right now क्या हिसाब किताब है? अभी ये मैं सोचूं कि एग्जाम के बाद क्या करूंगा. बच्चे ये सोच रहे हैं, बेटा एग्जाम खत्म हो जाए एक बार, उसके बाद बताऊंगा दुनिया को मैं क्या. तो सिचुएशन सारी ये चल रही है अभी बात का बाद में यार. अभी राइट नाउ ये मोमेंट ना एंजॉय कर दो. What I am feeling actually when I have gone through all this, the experience says it all. When I was in class 12, I just told कि कॉन्फिडेंस की बहुत जबरदस्त कमी थी, फोकस तो था ही नहीं. तो हम जो टीचर चाहते हैं आप लोगों से क्या करना चाहते हैं कि हम अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करते हैं. That's why you are here ना. रोज बस्ता पैक करते हो आप लोग, मम्मी पापा से डांट खा के यहाँ ट्यूशन भागते हो, तो सबके क्यों आते हो? ये पर्पस यही है ना कि सीखने आते हो. हम अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करते हैं.
कि यार कैसे फोकस करें। तो बहुत सीधी सी बात ये बता दूं आपको, मतलब बिखरा हुआ है समेट लो, बिखेरने का शौक पालो मत, बहुत पल रहा है आजकल, ठीक है, इसे समेट लो। उड़ाने बहुत ऊंची ऊंची है, बेसिक्स पे आ जाओ। एक पुस्तक है, उसे ग्रहण करना है। समाज में ज्ञान बढ़ रहा है और ज्यादा ही बढ़ रहा है, एक्चुअली इतना बढ़ रहा है, ऑनलाइन ऑफलाइन जहां जाओ ज्ञान ही ज्ञान बढ़ रहा है। तो सिंपल सी बात है, कोई बच्चा जेई पे जा रहा है तो भैया फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स 3 अच्छे टीचर और नैया पार। नीट पे जाना है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 3 अच्छे टीचर और नैया पार। अभी एक इग्नोरेंस की बात करता हूँ। एक पेरेंट मेरे पास आता है, सर अगले साल ना 11th में मेरा बच्चा आईआईटी में जा रहा है। मैंने कहा 11th नहीं जाते सर आईआईटी में, आईआईटी में जाते हैं 12th के बाद। नहीं सर फिटजी वाले कह रहे हैं, फिटजी में आईआईटी लगा, फिटजी। तो इग्नोरेंस, एक्चुअली अवेयरनेस नहीं है। उनको लगता है 2.5-3 लाख में इंजीनियर बन जाते हैं। ये फीस जो हमसे ले रहे हैं ना 2.5-3 लाख रुपया, 3 लाख रुपया, इसमें क्या होता है, हम इंजीनियर बन जाता है। ये इग्नोरेंस का लेवल है सर, और बहुत ज्यादा है। हर बच्चे को लगता है कि यहाँ कोचिंग लिया और पैसे दिए और उसके बाद तो बस ये लोग हमें बचाएंगे। अरे ये लोग नहीं बचाते, आप खुद पहुंचते हो। 3 किताबें, फिर क्या बोला मैंने, 3 किताबें। सेम गोज विद अकाउंटेंसी, सेम गोज विद मैथ, सेम गोज विद एवरी सब्जेक्ट। तो सिर्फ छोटी सी बात है कि अपने आप को संभालो। किताबों को मतलब क्या, कितना ज्ञान चाहिए आपको। एक एनसीईआरटी किताब बच्चे सॉल्व नहीं होती, कहता आईआईटी के ख्वाब देखूंगा, सीए बन जाऊंगा। अरे आराम से पहले किताबों से ग्रहण तो कर लो, जब भर जाए ना पूरी, जब उसका ज्ञान पूरा हासिल कर लो, उसके बाद जितने बढ़ की किताब पढ़ी, देयर आर एन नंबर ऑफ बुक्स, एन नंबर ऑफ लिटरेचर इन द मार्केट। पहले एक किताब को तो हजम कर लो आराम से, राइट। इतनी सी बात है बस, और ज्यादा कुछ नहीं कहना मुझे। यहाँ पर एक मौका देना चाहूंगा। बेसिकली यहाँ पर वी हैव गॉट काव्य, वी हैव गॉट हर्षिता। 4 साल पढ़े हैं मुझसे दोनों, और इनफैक्ट व्हाट आई फेल्ट इज लाइक, मैथ्स पढ़ाता हूँ और इंग्लिश पढ़ाता हूँ। एक मैथ्स का एग्जाम्पल सामने खड़ा है, इंग्लिश का एग्जाम्पल सामने खड़ा है। तो हॉर्सेस पर कोर्सेज वाली बात है, नॉट एवरीवन इज गुड विद एवरीथिंग। सो व्हेन इट कम्स टू काव्य, बड़ा पैशनेट है, ऑल्टरनेट करता है, डांट बहुत खाता है मुझसे, बिकॉज मेरी अब इसकी आंसर शीट सामने आती है तो हर बार नया मेथड, हर बार नया तरीका। मैं कहा यार ठीक है, मैं तुझे जानता हूँ, तू काव्य है, मैं तुझे पढ़ाया है, तेरी बातें मैं समझता हूँ। बोर्ड वाला टीचर तो अनभिज्ञ होगा इस बात से कि ये कौन है। ब्लूप्रिंट में सामने लिखा होता है, बहुत ही आसान भाषा में सिखा दो। टीचर्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड जीव है, इनकी समझ में नहीं आता, बिकॉज इनका ज्ञान एक हद तक रुक गया है। तो आप एक टीचर को स्टूडेंट की तरह पढ़ा दो, ऐसा आपका आंसर शीट होना चाहिए, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे टू यू एवरी टाइम आई एम चेकिंग योर पेपर। बट एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, अच्छा लिसनर है, लिसनर बहुत अच्छा है, और मैथमेटिक्स की सारी ट्रिक्स में से इसने ग्रहण कर ली है फिलहाल। तो बस उनको जाके उतार के आना है बोर्ड पे, एंड ही विल बी ऑल राइट। व्हेन इट कम्स टू हर्षिता, हर्षिता का एग्जांपल मैं हमेशा से देता आया हूँ। सबसे ज्यादा सैक्रिफाइस, सबसे ज्यादा पेस टेकिंग काम जो किया है वो हर्षिता ने किया है। इनफैक्ट इससे भी ज्यादा इसके पेरेंट्स ने किया है। आई मीन पहले इसका ब्रदर मुझसे पढ़ा, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इसका ब्रदर इज अ राइट एग्जाम्पल फॉर टेलिंग यू कि ज्ञान को बहुत आराम से सीखो। कोई जेईई कोचिंग कहीं से नहीं, स्काईलार्क का ही स्टूडेंट आराम से पढ़ता गया 4 साल मुझसे। उसके बाद 40,000 से भी कम रैंक, 30,000 के आसपास रैंक लाके पहली अटेम्प्ट में जेईई क्लियर। क्या किया, सिर्फ यही से। सर ये काफी रहेगा, मैंने कहा बहुत रहेगा, कुछ और गाइडेंस, मैं कहा पहले बोर्ड दे लो, उसके बाद तुम्हें गाइड भी कर देंगे। तो बस यहाँ से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ा, इंग्लिश भी लगा। साइंस का बच्चा 4 साल इंग्लिश पढ़ा, बच्चे इंग्लिश को ऐसे हटा देते हैं, अरे छोड़ो 12वीं के बाद बताएगा इंग्लिश तुम्हें कि पर्सनैलिटी किसे कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये भी 4 साल से पढ़ रही है, वो भी 4 साल पढ़ा, उसने भी एग्जाम्पल सेट कर दिया, वो भी मिस्टर स्काईलार्क रहा। नाउ वी हैव गॉट द सेम इन द फैमिली राइट। हर्षिता मिस स्काईलार्क बनी, इंग्लिश स्किल्स को पॉलिश किया, पिनाश के साथ लिखती है। जो फिनेस है इसकी राइटिंग में, मतलब ऐसा लगता है कि जब ये लिख रही है तो हाँ विक्रम सर लिख रहे हैं, बड़ा अच्छा लगता है देखकर। और जब ये मैथ्स करता है मुझे लगता है मजा आ रहा है चेक करके। मैं कुछ बताता हूँ, ये कुछ और करके आता तो ऐसा लगता है कि हाँ वो क्लास दे दी है, रटाया नहीं है, वो क्लास दे दी है। तो बस इतना सा ही बेटा बात है, और कुछ नहीं है।